ಮಾಡಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜೈ Straight? Sure. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೀನ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಏನಿವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೇಹಾ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹುಶಃ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಸಹ ಎತ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ 6 ತಿಂಗಳಿಂದಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರು ಸಹ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಬಂದು ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಇವತ್ತು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಶ್ರೀನಾಟಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈಗ ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮೇಡಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್. Thank you very much. Should I do Hindi English combined? आपको क्या प्रेफर होगा, हिंदी में बोलूं अंग्रेजी में बोलूं? बहुत धन्यवाद मंच पर बैठे हुए मंत्री जी, हमारे वरिष्ठ कोलीग्स, हमारे विधायक, मेरे सोशल मीडिया के साथी, यहाँ के डीसीसी प्रेसिडेंट और आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ क्योंकि तस्वीरें जो है वो सच ज्यादा बोलती है। इस तस्वीर में नरेंद्र मोदी जी 14 अप्रैल को, आज से 15-16 दिन पहले मैसूरू में प्रचार कर रहे थे और प्रचार करके वो प्रज्वल रेवन्ना की तारीफ कर रहे थे, उनकी पीठ थपथपा रहे थे और उनके लिए वोट मांग रहे थे। और भी बहुत सारी तस्वीरें प्रज्वल रेवन्ना की मोदी जी के साथ है। मोदी जी का परिवार आजकल चल रहा है, उसके हिस्सा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनकर प्रज्वल रेवन्ना है। मेरे लिए सबसे जरूरी तस्वीर ये वाली है और ये इसलिए जरूरी है, और एक मैं महिला होने के नाते कहती हूं, जिस तरह की बातें, जिस तरह की रिपोर्ट, जिस तरह के वीडियो, जिस तरह की हरकतें सामने आई हैं, दिस इज द विंस्टीन मोमेंट फॉर आवर कंट्री। एक आदमी इतनी दरिंदगी, इतना बड़ा राक्षस हो सकता है, ये सोचा नहीं जा सकता है। उसके हजारों वीडियो, सैकड़ों औरतों की जिंदगी तबाह करने वाले, हर तबके की औरतें, फ्रॉम एवरी सोशल स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी, फ्रॉम एवरी एज ग्रुप, अपैरेंटली अ 63-year-old हाउस होल्ड वर्कर, घर में काम करने वाली औरतें, पार्टी की कार्यकर्ता, जिला पंचायत की सदस्य,
किसी को इस राक्षस ने नहीं छोड़ा। तमाम वीडियो पेन ड्राइव पर सामने है। सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी इस आदमी ने तबाह करी। हासन का एमपी और बीजेपी का और जेडीएस का संयुक्त उम्मीदवार। अब आप कहेंगे कि गलत इसने किया है, राक्षस ये है, दरिंदगी इसने की है। मैं मोदी जी का नाम क्यों बोल रही हूं? नरेंद्र मोदी ने जिस दिन ये फोटो खिंचाई, जिस दिन प्रज्वल रवेन्ना के लिए वोट मांगा, जिस दिन उनके साथ मंच साझा किया, जिस दिन उनकी पीठ थपथपाकर तारीफ की, उस दिन नरेंद्र मोदी उसकी सारी वहशियत, उसकी सारी हरकतें जानते थे। And with all the due responsibility that I come to you with, Narendra Modi knew exactly what this man was, exactly what he was doing. He knew about all the allegations. He knew exactly what was in those videos. सब कुछ जानते बूझते हुए भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी ने इस राक्षस को, इस दरिंदे को अपना उम्मीदवार बनाया। और मैं हल्के में नहीं कह रही, उनको पता था। देवराज गौड़ा उन्हीं के नेता। उन्होंने दिसंबर 2023 में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को, नड्डा को, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को ना सिर्फ चिट्ठियां लिखी पर मेल भी करी और बोला कि इसके खिलाफ ऐसे ऐसे तथ्य हैं, ऐसे सबूत हैं, इसको उम्मीदवार ना बनाया जाए। ये दिसंबर की बात है। जनवरी में वो कर्नाटका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बेंगलुरु में, और दूध का दूध और पानी का पानी होता है, और बताते हैं कि ऐसा ये आदमी है, इसके खिलाफ ऐसे वीडियो है, ऐसे सबूत है, ऐसे साक्ष्य है, इसको ना बनाया जाए उम्मीदवार। अमित शाह फरवरी और मार्च के बीच में कर्नाटका आते हैं और उनसे बीजेपी के एक नहीं सैकड़ों कार्यकर्ता कहते हैं, इस आदमी को कैंडिडेट मत बनाइए, इसके खिलाफ महिला विरोधी, यौन उत्पीड़न, यौन शोषण के दरिंदगी के वीडियो हैं। उनके पूर्व एमएलए रामास्वामी जी, उनके पूर्व काफी सारे एमएलए उनसे कहते हैं इस आदमी को मत बनाइए। और उसके बावजूद भी मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, सारा सच जानने के बाद भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसको अपना उम्मीदवार बनाते हैं। जब एसआईटी गठित होती है, कर्नाटका की महिला आयोग एसपी को चिट्ठी लिखती है, सीएम को लिखती है, बिना विलंब के हम एसआईटी गठित करते हैं, यह आदमी भाग जाता है, यह देश छोड़कर भाग चुका है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को यह पता रहता है कि प्रियंका गांधी अपनी बेटी से मिलने 2 दिन के लिए कब गई, उनको यह नहीं पता है कि यह दरिंदा देश छोड़कर भाग गया है। लेकिन एसआईटी जो हमने गठित करी है वो इसके एक्सट्रेडिशन के लिए, इसके प्रत्यार्पण के लिए पूरी तरह से कमिटेड है, समर्पित है, और हम इंश्योर करेंगे कि दिस मैन शुड कम बैक एंड ही शुड फेस द माइट ऑफ इंडियन लॉ। लेकिन इस बात से कुछ सवाल जरूर खड़े होते हैं और वो सवाल खड़े होने लाजमी है। आज ये देश, आज इस देश की औरतें उस वीडियो में होने वाली दरिंदगी, उस वीडियो में होने वाली हैवानियत, उस वहशी दरिंदे को देखकर पूछ रही है किस मुंह से नरेंद्र मोदी ने इसको टिकट दिया, किस मुंह से नरेंद्र मोदी इसका प्रचार प्रसार करने गए, इसकी पीठ थपथपाई, इसके लिए वोट मांगे। सब कुछ जानते हुए, वो सब कुछ जानते थे, उनकी पार्टी के नेता सब कुछ जानते थे, उनको बताया गया था। लेकिन क्या ऐसा पहली बार हुआ? क्या पहली बार नरेंद्र मोदी या बीजेपी उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं जिन्होंने औरतों का शोषण किया है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, आई कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। कुलदीप सिंह सेंगर, who has been found guilty of murder and rape, was protected by the same government, by the same people till the very end. The Allahabad High Court had to intervene और उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया था। चिन्मयानंद, जब तक कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होता है उनको अरेस्ट नहीं किया जाता है। ब्रजभूषण शरण सिंह, चार्जशीट में नाम है,
इंडिया की सबसे होनहार बेटियां, द मोस्ट डेकोरेटेड एथलीट्स को आप सड़कों पर घसीटते हैं, उनको बूटों के तले रौंदते हैं, उनको पिटवाते हैं, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को अपनी गोदी में बिठाकर आज भी उसको टिकट देने की फिराक में है। इनका एक विधायक राम दुलार गौंड, ही हैज बीन फाउंड गिल्टी, एक नाबालिग के रेप का गिल्टी पाया गया है, दोषी पाया गया, आरोपी नहीं है। अभी कुछ महीने पहले उसको टिकट तब दिया जब उसके ऊपर पॉक्सो का केस चल रहा था। तो हर बार भारतीय जनता पार्टी, हर बार बीजेपी, हर बार नरेंद्र मोदी उन्हीं लोगों के साथ क्यों खड़े होते हैं जो औरतों के खिलाफ अपराध करते हैं, उनका यौन शोषण करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं? क्यों और किस मुंह से नरेंद्र मोदी महिला शक्ति की, नारी अभिवादन की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं? नरेंद्र मोदी बिल्कुल चुप। स्मृति ईरानी अपना मुंह सिर्फ एक व्यक्ति का नाम सुनकर खोलती है, अन्यथा उन्होंने मौन व्रत लिया हुआ है। और इस देश का महिला आयोग, the National Commission for Women, it is a slap on every woman's face in this country that that commission is being headed by an absolutely partisan woman. उनको जब विपक्ष का कुछ होगा तभी दिखता है, अन्यथा उनको दिखता ही नहीं है महिलाओं के खिलाफ। इसका स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन चुप है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर चुप है, प्रधानमंत्री चुप है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले मैं अमित शाह की एक टीवी पर बाइट सुन रही थी। उन्होंने कहा नारी शक्ति के साथ ये नहीं होता है, ये बड़ा गंभीर मामला है। अमित शाह जी, आपको मुझे चुनौती देकर मैं कहती हूं, आपको सारे मामले की जानकारी थी, आपके पास चिट्ठियां आई, आपके पास ईमेल आई, आप कर्नाटका और खासतौर से मैसूरू के दौरे पर थे फरवरी और मार्च में। आपको लोगों ने मिलकर बताया कि इस लड़के को टिकट मत दीजिए, ये ऐसी हरकतें करता है, उसके बावजूद आपने टिकट दिया। तो आकर यहां पर भोले मत बनिए, यहां पर आकर ड्रामा मत कीजिए, यहां पर आकर ढोंग मत कीजिए, क्योंकि आपकी असलियत ये पिक्चरें चीख चीख कर बयां कर रही है। एक आदमी जिसने न औरत की उम्र देखी, न उसका ओहदा देखा, न उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखा, सिर्फ और सिर्फ यौन शोषण किया, उस आदमी के साथ मंच साझा इस देश का प्रधानमंत्री कर रहा है, और तब कर रहा है जब उसके बारे में वो जानता है। आज मैं कुछ खबरों की बातें सुन रही हूं कि जेडीएस एक्शन लेगी। इनके पिताजी कह रहे हैं 4-5 साल पुराना वीडियो है, मतलब फेक तो नहीं है। 4-5 साल पुराने वीडियो पे क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या आधी आबादी के साथ ये टॉलरेट किया जाना चाहिए? आज सवाल इस बात का है। At the highest level, this is being looked into as far as the SIT is concerned. We are going to petition it, if need be, legally. But there is no way that the BJP's silence and the BJP's tactic to distract or to distance itself from this entire gruesome sex scandal can be ignored. आपके सवालों का स्वागत है। But this thing is in public domain since December. So why didn't the state government act in December? This thing is in public domain since December by a BJP leader. How are we to know that he was telling the truth or lying? But apparently he gave proof to his own party. He did not give proof to us. We did not see those videos. We did not have those pen drives. But the moment we got to know from the Karnataka Commission for Women, we acted on it. The gentleman that I spoke about, Devaraj Gowda, he apparently gave proof in writing with videos in pen drives to his leadership, not to us. So how could we have acted? I do believe there cannot be a clean pass, there cannot be a clean check given to the BJP or to the Karnataka leadership, nor to the national leadership of the BJP. They were in absolute know-how of who this man was, what was he doing, what were the charges, how many women's lives had he ruined, and they should have acted. कोई और सवाल? SIT has to take some time frame for disposing the case or giving its preliminary report. I think the SIT by its nature is an urgent move. It is not like a simple police investigation that's happening. The setting up of an SIT tells you how serious we are about this matter. The setting up of the SIT tells you that despite the fact that he fled this country, and I have no doubts in saying that he was in cahoots with the central government to flee this country. They know exactly who's coming in and who's going out. Amit Shah makes stupid, dirty statements
sly remarks on stage about Priyanka ji visiting her daughter. Did he not know that this man is fleeing the country? Of course he did. So the SIT is a very serious step that we have taken as far as probe and investigation into this matter is concerned. मैडम स्टेट गवर्नमेंट आपका ही है, जब कंप्लीट हुआ तो इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं लिया? बिल्कुल इमीडिएट एक्शन लिया गया। हमें जैसे ही कर्नाटका कमीशन ऑफ विमेन ने हमें स्वतः संज्ञान लेकर इन्फॉर्म किया, हमने बिना विलंब के SIT फॉर्म करी। फिर वो जैसे आप बोल रहे हो कि वो भागे, तो वो कैसे होगा? इंटरनेशनल फ्लाइट्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, इमिग्रेशन कर्नाटका सरकार के अंतर्गत नहीं आता है। ये सारा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। उस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जिसने जानबूझकर सब कुछ जानते बूझते इस आदमी को टिकट दिया, ये याद रखिएगा। आप हमें अटैक करिए, हमसे सवाल पूछिए, उसका मैं स्वागत करूंगी, लेकिन ये मत भूलिएगा कि इस आदमी को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने अपना साझा उम्मीदवार बनाया, तब बनाया जब वो सब जानते थे। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सेस टू एवरीबॉडीज ट्रैवल डिटेल्स। अमित शाह पब्लिक रैली में प्रियंका जी की अपनी बेटी से जाने की बात बोलते हैं, यहां पर क्यों नहीं उनको पता चला? आपको लगता है वो इन्वॉल्व नहीं है? Madam, Kumar Swamy is giving an Let me, I think you've asked two questions. Let me give them a chance. I'll come back to you. बीजेपी के एमपी आपने किन्हीं के लोगों का नाम लिया, जो चिन्मानंद होगा, लेकिन वो भी मामला कुछ ऐसे आगे नहीं बढ़ पाया, तो क्योंकि केंद्र सरकार ने इतने कानूनात्मक चीजें कदम उठाए नहीं। फिर ये भी आपको विश्वास है कि ऐसा होगा कि इसको न्याय मिलेगा? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा नहीं है कि वो मामले आगे नहीं बढ़ पाए। कुलदीप सिंह सेंगर ना सिर्फ अरेस्ट हुए, बीजेपी के MLA थे, सारी बीजेपी लगी हुई थी उनको बचाने के लिए, वो दोषी भी पाए गए, वो सजा उम्र कैद की काट रहे हैं। रामदुलार गौंड पॉक्सो के मामले में नाबालिग के रेप में अरेस्ट हुए, दोषी पाए गए, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह हो, सारे टिकट बीजेपी ने अनाउंस कर दिए यूपी में। वो टिकट इसलिए नहीं अनाउंस कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग रह रहकर ये याद दिलाते हैं कि महिलाओं के साथ इन्होंने क्या किया। तो ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं हुआ है, एक्शन बिल्कुल हुआ है, ये लोग दोषी भी पाए गए हैं। और एक ये पैटर्न भी दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी में इसी तरह के दानव, इसी तरह के राक्षस भरे हुए हैं। आपने बोला कि कानूनी कार्रवाई होती है, लेकिन बीजेपी अपने तरफ से कुछ कार्रवाई नहीं कर पाती, आप पार्टी से कुछ। एब्सोल्युटली, यही मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यही मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का समिंग सब्सटेंस है, यही मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का तत्व है कि बीजेपी ना सिर्फ कार्रवाई नहीं करती है, पर बीजेपी ऐसे ही लोगों को संरक्षण देती है। बीजेपी बेटियों के साथ नहीं खड़ी होती है, बीजेपी पीड़िताओं के साथ नहीं खड़ी होती है। बीजेपी हर बार, चाहे वो अंकिता भंडारी हो, चाहे वो बिल्किस बानो हो, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो उन्नाव हो, चाहे वो लखीमपुर हो, चाहे वो ब्रजभूषण हो, चाहे वो प्रज्वल रेवन्ना हो, बीजेपी हर बार संरक्षण और पेट्रोनेज आरोपी को, दोषी को देती है, विक्टिम और पीड़िताओं को नहीं। बिल्कुल मैं इस बात से I will take his question. Are you asked? I'll come back to you. I'll come back to you. प्रज्वल रेवन्ना हासन से पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो वहां पर मतदान हुआ है ऑलरेडी। तो अगर ये जो इस तरह का ये एक तरफ गिनती निकलते हैं या फिर वो वहां से अगर जीत जाते हैं या कुछ होता है, तो हमने कल इलेक्शन कमीशन को मिलकर ये पेटिशन किया है कि इस तरह की दरिंदगी की खबर आने के बाद, एंड स्पेशली बिकॉज ही हैज फ्लेड द कंट्री, स्पेशली बिकॉज ही इज अनट्रेसेबल, वो देश छोड़कर भाग गए हैं, वो लोकसभा के कैंडिडेट है, लोकसभा के MP है। हमने इलेक्शन कमीशन को पेटिशन करके इस इलेक्शन को रद्द करने की मांग ऑलरेडी कल की है। मिनिस्टर वन क्वेश्चन सुधाकर सर, He is asking a question on Nirbhaya. We'll just come to you 1 minute. Yes. जब निर्भया का इंसिडेंट हुआ तो देश जुड़ गया, जो सक्षम था अपोजिशन, जो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसको, जो टोटल स्प्रेड मींस जो अवेयरनेस होना चाहिए था, उन्होंने किया। कांग्रेस क्यों नहीं इतना? My brother, I have a question for you. I was a journalist when Nirbhaya happened. आपकी तरह मैं एक पत्रकार थी और रात भर हम इंडिया गेट पर खड़े रहते थे और हम सब अपने मन में जानते थे कि केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार हर वो कदम उठा रही है जो उसको उठाना चाहिए। 2:30 बजे रात को अगर निर्भया इलाज के लिए गई, तब भी इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने उसको इलाज के लिए भेजा। दुर्भाग्यवश जब उसकी मृत्यु हो गई, तब भी वो टारमैक पर रात को 3 बजे खड़े हुए पाए गए। उसके इलाज में कोई कोताही नहीं बरती गई, उसके दोषियों को तुरंत अरेस्ट किया गया और उनको फाइनली फांसी की सजा हुई। उसके भाई को राहुल गांधी ने बिना कोई प्रचार किए, बिना टीवी पर आए, बिना सोर्सेस के माध्यम से पढ़ाया, पायलट बनाया, उसकी मां ने सच दुनिया को बताया। लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है,
और अंतर यह है कि आप जैसे और मेरे जैसे पत्रकार तब धज्जियां उड़ाते थे सरकार की, ये जानते हुए कि सरकार ठीक कर रही है। आज मेन स्ट्रीम मीडिया में, कल मैंने ये इशू दिल्ली में उठाया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हमने इसको बड़ा मुद्दा बनाया, बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया, आई हेट टू से दिस, मुख्य धारे के मीडिया ने इस पर एक भी टीवी डिबेट नहीं किया। एक भी टीवी डिबेट इस देश के मुख्य धारा मीडिया ने नहीं किया। तो जब आप कहते हैं कि ऑपोजिशन सक्षम था, जी नहीं, ऑपोजिशन सक्षम तब होता है जब लोकतंत्र में ऑपोजिशन को सक्षम करने वाली एजेंसीज, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो सीएजी हो, चाहे वो मीडिया हो, वो सक्षम देती है, वो प्लेटफॉर्म देती है, वो आवाज बनती है ऑपोजिशन की। आप मुझे बताइए, इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल इस देश में हुआ, बड़े बड़े चैनल्स यहां पर आए हुए मैं देख रही हूं, दिल्ली के चैनल्स, यहां के चैनल्स, कितने चैनल्स ने इस मैटर पर डिबेट किया। आई गो ऑन टेलीविजन डिबेट्स एवरी इवनिंग। मैंने कल कॉन्शियसली पूछा, नॉट वन मेन स्ट्रीम मीडिया एटलीस्ट इन द हिंदी हार्टलैंड डिबेटेड दिस इशू। क्यों? ये जिन लड़कियों के साथ हुआ, ये देश की बेटियां नहीं है, ये निर्भया नहीं है। मणिपुर होगा तो इस देश का मीडिया 2012 में सरकार से सवाल पूछता था, अब जब मणिपुर होता है तो इस देश का मीडिया पूछता है। लेकिन वीडियो की टाइमिंग जरा समझाइए, वीडियो की टाइमिंग ज्यादा जरूरी है या इस देश की बेटियों के साथ, इस देश की आधी आबादी के साथ हो रहा है, ये ज्यादा जरूरी है? तो मुझे ऐसा लगता है, आप पत्रकार हैं, क्योंकि मैं आपकी जगह रह चुकी हूं, थोड़ा, मैं आपको नहीं कह रही हूं, लेकिन एक पत्रकार कम्युनिटी को एट लार्ज, मीडिया को एट लार्ज, आपको चौथा स्तंभ डेमोक्रेसी का कहा गया है, वो चौथा स्तंभ पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, वो मोदी का चेयर लीडर बन गया है। मैडम जी, अभी आप जब भी इलेक्शन आता है, पॉलिटिकल पार्टी वाले हर एक घटना को मुद्दा बनाते हैं। जब कुछ ही दिन पहले मैसूर में एक मुस्लिम लड़की को, प्रेग्नेंट लड़की को जला दिया गया, कोई भी आपका एक कांग्रेस लीडर, कोई भी एक उसके खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दिया। जब इलेक्शन आता है तो हर मामले को आप मुद्दा बनाते हैं, और जब इलेक्शन नहीं रहता, जब कोई भी जलो या मरो, आपको कोई परवाह नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपका क्या नाम है? महबूब मकानदार। महबूब भाई, आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, इतना बड़ा मामला सामने आया, विमेन कमीशन ने इसको स्वतः संज्ञान लिया, उन्होंने नोटिस इशू किया, उस तरह के जो 3000 के करीब वीडियो सामने आए हैं, सैकड़ों औरतों की जिंदगी बर्बाद हुई है, तो हम क्या करें? हम अपने मुंह में दही जमाकर, जिस पर जीएसटी लगा दिया सरकार ने, चुपचाप बैठे रहे? मुझे आप सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, ये बिल्कुल बेसलेस एलिगेशन है सर। दिस इज नॉट अ डिबेट, प्लीज डोंट इंटरव्यू। मैं बोल रही हूँ, लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक। आई विल नॉट आंसर एनी क्वेश्चन, ये डिबेट नहीं है। आई विल आंसर योर क्वेश्चन, आई विल आंसर। ये टीवी डिबेट नहीं है और आप टीवी डिबेट के पार्टिसिपेंट नहीं है, आप पत्रकार हैं। आप मुझसे एक नहीं 10 सवाल पूछिए, लेकिन मुझे अपनी बात कहने का मौका दीजिए, बीच में मत बोलिए। ये टीवी डिबेट नहीं है, ये टीवी डिबेट की तरह कंडक्ट भी नहीं होने दूंगी मैं। अगर आप इस तरह से करिएगा तो आप प्रेस वार्ता कर लीजिए, इस तरह से नहीं। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने काउंटर क्वेश्चन पूछा, अगर ऐसी घटना सामने आई है तो हम क्या करें? हम चुप रहे? हम इसलिए चुप रहे क्योंकि चुनाव चल रहा है। अरे चाहे वो चुनाव के वक्त हो या चुनाव के वक्त ना, मणिपुर के टाइम पर तो कोई चुनाव नहीं था, बिल्किस बानो के टाइम पर तो कोई चुनाव नहीं था, सिर्फ एक पार्टी ने इस पर बोला था और वो कांग्रेस पार्टी थी। तो ये क्या सवाल है कि हम क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल गलत हुई है, बिल्कुल गलत हुई है। आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप इस चीज को बिल्कुल गलत कलर दे रहे हैं और मैं बता दूं क्यों। किसी भी सभ्य समाज में अगर एक भी औरत के साथ गलत होता है, वो चाहे मैसूर हो या मणिपुर हो, वो गलत है। सरकार कार्रवाई क्या करती है, ये ज्यादा जरूरी है। मणिपुर में जब ये गलत होता है तो 76 दिन तक उसको छुपाया जाता है। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते तो हम बिल्कुल शोर मचाएंगे। प्रधानमंत्री जानते बूझते हुए इस आदमी को उम्मीदवार बनाते हैं, हम बिल्कुल मुद्दा बनाएंगे। एक सभ्य समाज में सरकारों का, ऑपोजिशन का, पॉलिटिशियंस का ये काम है। ये टीवी डिबेट नहीं है कि जिसमें आप मेरी पे ही। ये मुद्दा दलगत राजनीति से ऊपर है। चाहे चुनाव होते चाहे ना होते, ऐसे दरिंदों की, ऐसे राक्षसों की ना हमारे सार्वजनिक जीवन में, ना हमारे समाज में कोई जगह है। ಸರ್, ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದು 24 ಗಂಟೆ ಕಳೆದೋಯ್ತು. A1 ಆರೋಪಿ ರೇವಣ್ಣ, HD ರೇವಣ್ಣನೇ ಇರೋದು. ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ದು ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏನು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಅದನ್ನ
ನಾಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಏನೇನು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತೊಂದು ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ FIR ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಆಗ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ತನಿಖಾ ತಂಡದವರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಅವರು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ FIR ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಓವರ್ ಟು ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಟೀಮ್, ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಆಲ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್, ಆಲ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಈಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಈ nothing to do with Narendra Modi. Kumaraswamy is saying that nothing to do with Narendra Modi. What is Kumaraswamy going to say? What is Kumaraswamy going to say? Kumaraswamy is Modi's ally. Modi is here in this picture. What do you mean he has nothing to do with it? Was Devaraja Gonda lying? Is he lying about the fact that he sent all the proof, the mails, the pen drives to the BJP headquarters? Is he lying about writing about this to the state leadership? He is not. If he is telling the truth, if people met Amit Shah, they gave their petitions. Apparently, they met him in Mysuru. Where is the doubt? For how long will this country shut its eyes when Narendra Modi is concerned? I want to know this. मणिपुर होगा तो मोदी जी की गलती नहीं है, बिल्किस बानो होगा मोदी जी की गलती नहीं है, उत्तराखंड होगा मोदी जी की गलती नहीं है, कुछ गलत होगा मोदी जी की कोई गलती नहीं है, कुछ सही होगा तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी होगा। नीरज चोपड़ा जैवलिन फेंकेगा मोदी जी की वजह से, कॉमनवेल्थ में मेडल्स आएंगे मोदी जी की वजह से, स्विमिंग में कोई जीतेगा मोदी जी की वजह से, वैक्सीन हमारा बनेगा मोदी जी की वजह से, वहां पर चंद्रयान पे हम जाएंगे साइंटिस्ट की नहीं मोदी जी की वजह से। अच्छा मीठा मीठा गप होगा, कड़वा कड़वा थूक होगा, बिल्कुल नहीं। जो कांड हुआ है इसके बीजेपी के जो नेशनल लीडर्स हैं एक भी स्ट्रांगली कंडेम नहीं किया है, एक। और दूसरी जो क्वेश्चन है जो कोविशील्ड के बारे में आया है, यस, वो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो दोनों क्वेश्चन की है। मैं सबसे पहले तो ये जरूर बोलना चाहती हूं कि अगर बीजेपी को लगता है कि वो इस पर बिल्कुल चुपचाप रहकर इससे डिस्टेंस कर सकते हैं तो वो बिल्कुल संभव नहीं है। आपके साझा उम्मीदवार थे, साझा उम्मीदवार सारी जानकारी के बाद घोषित हुए, साझा उम्मीदवार सारी जानकारी के बाद घोषित हुए, साझा उम्मीदवार के बाद आपने इनका प्रचार किया, इनका प्रसार किया, इनकी पीठ थपथपाई, इनके लिए वोट मांगे, इनकी प्रशंसा करी स्टेज पर। तो बीजेपी किसी भी तरह से बड़ी नहीं हो सकती। जैसा कि मैंने कहा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सब कुछ पता था, पहली बात। और कंडेमनेशन के नाम पर यह कहा जा रहा है नारी शक्ति के साथ ऐसा नहीं हो सकता। नारी शक्ति के साथ आपकी नाक के नीचे जो देश में हो रहा है वो सभ्य समाज पर ही नहीं, हमारे अध्याय काल में धब्बा है। आपका सेकंड क्वेश्चन बहुत जरूरी क्वेश्चन है। एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में बताया है यूके में कि उसमें जो थ्रोम्बोसिस टाइप का रिएक्शन है, बड़े बड़े खून के थक्के बन सकते हैं और उससे ही हार्ट अटैक और ये सारी चीजें हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह के इंसिडेंट्स हमने इंडिया में देखे हैं, लोग चलते चलते एकदम से गिर के मर जाते हैं, कोई पूजा करते करते मर जा रहा है, किसी की शादी हो रही है वो मंडप में बैठ के मर जा रहा है, कोई लॉन टेनिस खेल रहा है, कोई डांडिया कर रहा है, एकदम से गिर के मर जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार को इसमें पूरी तरह से छानबीन करानी चाहिए, पता करना चाहिए कि क्या साइड इफेक्ट्स हैं। एस्ट्राजेनेका ने ही कोविशील्ड बनाई थी। ये खबर सुनकर लोग खासे परेशान हैं जिन लोगों ने वो वैक्सीन ली थी। मेरा अपना मानना है कि एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते सरकार को एक मेडिकल इंडिपेंडेंट असेसमेंट कराना चाहिए और पता करना चाहिए किस तरह के साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि जिस तरह की डेथ्स ऑल ओवर इंडिया रिपोर्ट हो रही हैं, एक इन्वेस्टिगेशन की, एक असेसमेंट की, एक मेडिकल प्रोग्नोसिस की बहुत जरूरत है। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच। और एक क्वेश्चन है, जो स्टेट में चल रहा था पेन ड्राइव जो भी ये इशू चल रहा था, यू कैन टेक इट फ्रॉम मी ऑफलाइन। नहीं इसके बारे में नहीं है, आप 6 महीने से वो चल रहा था इशू, और आपके पक्ष उन्होंने भी, जब जेडीएस अलायंस नहीं था तभी उन्होंने बोला था कि पेन ड्राइव, हमारे पास भी एक पेन ड्राइव है। जो पेन ड्राइव पॉलिटिक्स बहुत चला कर्नाटक में, आप जो बोल रहे हो ना इशू क्यों उठा नहीं रहा है, यही एक मुद्दा है। लोगों की इतना बहकाव में गए
कि दोनों जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस, इन्होंने मिलके लोगों के दिमाग से ऐसा खेला कि पेंड्राइव पॉलिटिक्स पिछले 8 महीने से पेंड्राइव पॉलिटिक्स चल रहा है। और ये जो कल रिलीज हुआ है ना, I strongly disagree. The government always takes, I'm telling you, the government always, you can have evidence but you're not the police, nor are you the government. And if you had evidence on you, sir, one second. If you had the evidence on you, you should have gone to the police. Did you go to the police? Did you register a complaint? Did you file an FIR? Did you say this is the video I have? इस आदमी ने ये किया है. Some video that you are seeing. जो आपके लीडर ही बोलते हैं कि मेरे पास एक पेंड्राइव है, मैं लिख के भेजूं, मेरे पास रखा हूँ, रिलीज नहीं करूंगा, जब टाइम आएगा तब रिलीज करूंगा। Some video that you are watching. आपके पार्टी वाले आप मुझसे ज्यादा तेजी से चिल्ला नहीं पाएंगे क्योंकि माइक मेरे पास है। तो माइक इज विद मी। आप सुनिए तो बस है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, अगर आपके पास पेन ड्राइव में ये था तो आपको जाना चाहिए था पुलिस, आपको FIR करनी चाहिए थी, आपको जाके बताना चाहिए था। ये कहना कि मेरे पास था तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? देन यू कल्पेबल, आई होप यू रियलाइज दैट। थैंक यू। ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೋಕಲ್ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಡಮ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ ಮೈಕ್ ಇದೆ ಸರ್ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚುನಾವಣೆ ಹೇಗಾಯ್ತು? ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚುನಾವಣೆ ಆಯ್ತು, ಚುನಾವಣೆ ಹೇಗಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಓಡಾಡಿದ್ರು.